Good morning, students. Welcome again. Last time we had started with the chapter democracy and need for it, and we had seen that Abraham Lincoln had given the definition of the democracy, it is a form of a government for the people, by the people, and of the people. Then after that we had seen that democracy had started from Athens in Greek in 1000 BC and till 320 BC. After that we have come to know that the term republicanism was given by the Romans, and in that it means that the power rests with the commons, people, and not with the king. In fact, these had one drawback, that they had some restriction. This restriction were basically on the people who can participate in formation of the government, and this formation they were like slaves, women, and aliens. They could not participate in this formation of the government, and they had no right to give the vote. Now, then we had seen many revolutions, like 1688, the revolution started in England, and that through the king, that king does not have the power, but it is a people. Then French Revolution, again almost after 100 years, it was in 1789, and it came with a constitution, that is the rule of law. Rule of law was made, and then the American War of Independence, and in 1917 we came with the forward with the Russia, and in Russia also there was a revolution, and they thought that the political equality doesn't have any significance until and unless social and economical equalities are there. Okay, तो यहाँ तक हमने ये पहले पढ़ लिया था, and now we starting with the next, that is a form of government. There are various types of government. There are various types of government that exist in today's world. All over the world you can see in India we have democracy, but somewhere there is a king also, who is the head of that particular country. There are some dictatorships also, like you might have heard, देखा होगा आपने इस पे टीवी वगैरह पे कि किम जोंग और चाइना का शी जिनपिंग और कई ऐसे हैं, ये जो है ये पॉपुलर हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये लोग, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ. तो ये लोग जो हैं ये एक्चुअली में काफ़ी पॉपुलर है. इनफैक्ट यू माइट हैव हर्ड अबाउट द क्वीन इन इंग्लैंड. क्वीन इज़ देयर, क्वीन एलिजाबेथ. ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज पर योर सिलेबस. फर्स्ट is monarchy. What is monarchy? Monarchy is a system of government in which all the power are in the hands of the king or a queen, whose office is hereditary. Whose office is hereditary का मतलब, hereditary मतलब यानी राजा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा. That is hereditary, यानी आप उस पर्टिकुलर उनके बेटे होंगे तभी आप राजा बन पाएंगे. लाइक इन इंडिया एनीबडी कैन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इफ़ ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. इट इज़ डजेंट मैटर कि जैसे नरेंद्र मोदी का जो बेटा है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ऐसा नहीं है. ओके, बट एनीबडी कैन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. बट इन मोनार्की सिस्टम इट इज़ हेरिडेटरी, एंड the king or queen जो हो गए, king or queen, the power is with king or queen. तो ये दोनों के पास ही पावर है. ओके, एंड It can be of two types, absolute monarchy
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसमें भी दो टाइप के हैं, वन इज एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट द रूलर हैज़ द टोटल कंट्रोल, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, सब कुछ, यानी पूरे जो स्टेट है उसको वो कंट्रोल करता है। एंड ही हैज़ द ट्रेमेंडस पावर, ट्रेमेंडस पावर, यानी उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन मोनार्की। मोनार्क, ये मोनार्क यानी जो राजा है या रानी है, जो भी है मेन, उसके पास सभी पावर होते हैं। ओके, दैट इज ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन मोनार्क। ओके, सो ये मोनार्क है, इसके पास सभी पावर होंगे और ये ही डिसाइड करेगा कि कैसे चलना है, कौन क्या करेगा। देन देयर इज अनदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? Under, like in French Revolution, you had seen that constitution was made, that is a set of law that everybody have to follow these laws, whoever are the citizens of that country. Okay, under constitutional monarchy the power of the ruler are specified by the constitution, यानी ये जो monarch है इसके पास क्या पावर रहेंगे ये डिसाइड कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? पीपल की राय लेके, और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और मोनार्क के पास क्या पावर रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। ओके, स्पेसिफाइड बाय द ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दिस पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के पावर को डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के पावर को डिसाइड करेगा। लाइक इन यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पे आप सुनते हो कि क्वीन एलिजाबेथ है। एंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका यूके, यानी इंग्लैंड, जो इंग्लैंड भी कहते हैं नाम उसका, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे क्या है, ये जो मोनार्क है, यहाँ पे मोनार्क कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, उसके जो पावर्स है दैट इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और दैट इज़ लिमिटेड पावर, कि उसके आगे वो नहीं जा सकती, कभी भी अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकती। बट इन एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्क को सभी पावर्स होते हैं, ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे होते हैं लिमिटेड पावर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मोनार्की में दो टाइप की मोनार्की होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में सब पावर मोनार्क के पास है, ऑल पावर इन विथ मोनार्क, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में मोनार्क के पास लिमिटेड पावर होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो you have to understand this. This is the first form of the government, that is monarchy. Monarchy type of government is this one. Now coming to the next one. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मोनार्की क्या होती है। मोनार्की में दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप है थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक स्टेट क्या है? इन ए थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन, यानी जो एक रिलीजन पे काम करते हैं, कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन होगा। पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज़ ए यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ,
ये जो स्टेट होता है, देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन, ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ऑफिशियल रिलीजन होता है, ये रिलीजन बेस्ड होता है, थियोक्रेटिक स्टेट। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज ए थियोक्रेटिक स्टेट, ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस with the Islamic teaching. Most of the people of Pakistan follows Islam. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइक पाकिस्तान में जो थियोक्रेटिकल है वो वहाँ पे द मेजर रिलीजन इज इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, और वहाँ पे जो भी रूल बनते हैं वो एज पर द इस्लामिक लॉज, और उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एक रिलीजन बेस पे होता है, और अब तो वहाँ पे दूसरे रिलीजन जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनकी इतनी नहीं सुनी जाती, बल्कि दैट इज़ अ ऑफिशियल रिलीजन जो भी होगा, एक होगा कोई भी, इट में भी क्रिश्चियन, इट में भी इस्लामिक, इट में भी हिंदू और सम अदर, एंड तो वहाँ पे जो है पर्टिकुलर उस रिलीजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो लोग हैं उनकी आबादी भी पर्टिकुलर रिलीजन की ज़्यादा होती है। ओके, दैट इज़ ऑल लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग। यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, नाउ एक और होता है सेक्युलर स्टेट। अब आप पूछेंगे ये सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलर स्टेट लाइक हमारा भारत जो इंडिया है, इट इज़ अ सेक्युलर स्टेट। यहाँ पे पर्टिकुलर एक रिलीजन को महत्व नहीं दिया जाता है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, हियर देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन। तो यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है और यहाँ पे एक ऑफिशियल रिलीजन है। ओके, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ओके, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, और हर एक इंसान को, भले वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो अपना जो रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो फॉलो करे। पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन फेथ हैव आल्सो द राइट टू बिल्ड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, और सभी को हक है कि वो अपना जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि जो हिंदू हैं वो मंदिर में जाते हैं, जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में जाते हैं, सिख हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग रिलीजन, जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च में जाते हैं। तो वो अपना धर्म का जो स्थान है जहाँ पे वो वर्शिप करेंगे वो बना सकते हैं। बस उसके लिए ये नहीं कि कहीं पे भी बना सकते हो, दैट इज़ द प्रोवाइडेड प्लेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और दे हैव टू परचेज दैट प्लेस। People following different religion faith have also the right to build their place of worship. No religious activity is financed by the state. गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगी आपको कि रिलीजियस एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती है। यहाँ पे ये बहुत ही नो रिलीजियस एक्टिविटी is financed by गवर्नमेंट। तो कोई भी, तो यहाँ पे देखो थियोक्रेटिक स्टेट और सेक्युलर स्टेट ये आपस में अलग है, और थियोक्रेटिक स्टेट में एक ऑफिशियल रिलीजन होते हैं एंड स्टेट जो पूरा है उसी का अकॉर्डिंग काम करता है, बल्कि सेक्युलर स्टेट उसका ऑलमोस्ट अपोजिट है, और यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, सभी रिलीजन आर कंसिडर्ड एज इक्वल, और नो रिलीजन एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका एग्जांपल हमारा था दैट वाज पाकिस्तान, एंड इट इज़ हैविंग इस्लामिक
ओके, एंड यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था इंडिया। ओके, यहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, मोनार्की देख लिया, थियोक्रेटिक स्टेट देख लिया, सेक्युलर स्टेट भी देख लिया। नाउ वी विल बी मूविंग टू डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप, जैसे ही हम कहते हैं कि डिक्टेटरशिप, सभी के ध्यान में आता है, दैट इज़ एक नाम है, दैट इज़ हिटलर। हिटलर जो था, ही वॉज ए डिक्टेटर एंड बहुत ही फेमस डिक्टेटर है वो था। डिक्टेटरशिप, ओके। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप होता है कि वन पर्सन, डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड ऑन ए सिंगल इंडिविजुअल, यानी एक आदमी, ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड all powers are with a single individual. Power, absolute power is vested on in a single इंडिविजुअल, यानी एक आदमी के पास पूरा कंट्री का पावर है। तो सोचो कितना पावरफुल होगा। और हो सकता है कि वो आदमी की जो सोच है वो थोड़ी अलग हो, एंड ही माइट बी साइकिक और एनीथिंग ही कैन बी, बट जब उसके पास पूरी पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज एडोल्फ हिटलर। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ही वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी। ये जो एडोल्फ हिटलर था, ये था जर्मनी का, जर्मनी एंड नाजी पार्टी, नाजी पार्टी थी उसका, वो ही वॉज द लीडर, और उसने पूरे जर्मनी, इनफैक्ट काफ़ी हिस्सा जो वर्ल्ड का था उस पर कोहराम मचा रखा था। Our neighboring country म्यांमार इज़ रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। हमारे जो पास में जो कंट्री है म्यांमार, म्यांमार नाम सुना? ओके, म्यांमार अर्लियर इट वाज बाय द नेम बर्मा, देन इट गॉट चेंज्ड एंड इट बिकेम म्यांमार। सो इट इज़ रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर। यहाँ पे जो मिलिट्री का जो जनरल होता है वो रूल करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ओके, अब ये था डिक्टेटरशिप का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एब्सोल्यूट पावर सिंगल इंडिविजुअल, ये ध्यान रखना, सिंगल इंडिविजुअल के पास होता है। लाइक हमारा जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे भी सिंगल इंडिविजुअल है, उसके पास किम जोंग, उसके पास ये पूरा पावर है, and he can decide anything, he can kill also, he is killing also people। तो एक टाइम था ये एडोल्फ हिटलर था, he was from Germany, नाजी पार्टी, and ये he was the person who जिसने कि वर्ल्ड वार 2 जो थी उसके लिए भी कहते हैं कि ये जिम्मेदार था, एंड ही स्टार्टेड बिकॉज ही वाज अ मेंटली, उसको ये लगता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ही कैन, जर्मनी जो पीपल हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, और इसीलिए उसने वो जो वर्ल्ड वॉर था वो भी स्टार्ट किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ये डिक्टेटरशिप थी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। They remain in power as long as they enjoy the confidence of legislature, that is the parliament. The moment a no confidence motion is passed, they have to resign. Thus, the relations between the legislature and the executive, the ministers, are usually smooth. UK is presented on the mother of parliamentary form, is presented as the mother of parliamentary form of गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव्स, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिलके दे फॉर्म है पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, और ये उसके पार्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑल अदर आर मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेचर, एंड वो तब तक पावर में रहेंगे जब तक लेजिस्लेचर में उनके कॉन्फिडेंस है, यानी दे हैव द फेथ, यानी लेजिस्लेचर को उन पे फेथ है। जैसे हमारे यहाँ पे सरकार जो होती है, दैट हैव टू प्रूव द मेजॉरिटी, और तभी वो सरकार बन पाए। लाइक रिसेंटली जो थे, लाइक नरेंद्र मोदी की जो पार्टी थी बीजेपी, इट स्टार्टेड, इट गॉट द मेजॉरिटी, और आज की डेट में पार्लियामेंट में वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इट हैव गॉट द मेजॉरिटी, और इसीलिए वो तब तक वो रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके, जब तक कि उनके पास मेजॉरिटी है। इफ़ मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है तो उनको अपने जो गद्दी है, दैट इज़ द चेयर ऑफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो पोस्ट मिली है, और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पार्टी के, उनको वापस हटना पड़ेगा, एंड अगेन देयर विल बी इलेक्शन, और जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ पे यूके जो है, ये इसको कहते हैं कि इट इज़ द मदर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, सो यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो काउंसिल होते हैं और नो कॉन्फिडेंस अगर है तो फिर वो सरकार गिर जाएगी, ओके। दिस आर डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने अभी तक पढ़ लिया 5 टाइप के। फर्स्ट थी मोनार्की, ओके। मोनार्की के बाद हमने पढ़ा था दैट वाज द थियोक्रेटिक स्टेट। मोनार्की 2 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देन वी केम विथ थियोक्रेटिक स्टेट, देन वी केम द सेक्युलर स्टेट, देन केम द डिक्टेटरशिप, एंड फाइनली द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज आल्सो टेकन। पार्लियामेंट्री फॉर्म, जैसे कि हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसी के सब मेंबर होते हैं। नाउ कम्स द 6th वन, दैट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेस्ट एग्जांपल आपको अगर आता है, तो अगर टीवी वगैरह थोड़ी बहुत देखते हो, तो सबसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका। अमेरिका में जो है ऑल पावर आर विद द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि बट पार्लियामेंट को भी उसके साथ में लेके चलना होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन USA। In America, the president or the head of the executive is independent of legislature called Congress। वो अलग है। उस जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, प्राइम मिनिस्टर हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट लेजिस्लेचर, बट हियर द प्रेसिडेंट or the head of the executive is independent of legislature. Just write down, president is independent of the
legislature. Okay. Once elected, the president remains in office for full term. उसको कोई हटा नहीं सकता है. एक बार अगर प्रेसिडेंट बन जाता है, जैसे 5 साल के लिए अगर इलेक्शन है तो वो 5 साल तक वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो बना के रखेगा एंड उसको कोई निकाल नहीं सकता है. 5 साल तक वो वहीं पे रहेगा. और फुल टर्म ऑफ 4 years. ये अमेरिका में 4 साल है. ही कैनॉट बी रिमूव्ड ईजिली बिफोर हिज टर्म इज ओवर. तो he can enjoy the full 4 years. He cannot be removed from the easily remove नहीं कर सकते हैं. The ministers called the secretaries are answerable to the president, not to legislature. इंडिया में जो मिनिस्टर हैं उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, कोई भी उनसे पूछ सकता है. बट अमेरिका में प्रेसिडेंट इज़ इंडिपेंडेंट और वो जो सेक्रेटरीज है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही आंसर देंगे. कोई उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट ही को ही दे आर आंसरेबल. द मिनिस्टर कॉल सेक्रेटरीज आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, नॉट द लेजिस्लेचर. इन USA इट इज़ possible that president belongs to one party whereas some other parties are majority in Congress. और उसमें ये भी है जैसे इंडिया में है, जो प्राइम मिनिस्टर है ही विल बी कमिंग फ्रॉम मेजर पार्टी, यानी पार्लियामेंट में जो बड़ी पार्टी होगी उसी से प्राइम मिनिस्टर आएगा. ओके. बट अमेरिका में ऐसा नहीं है. जो प्रेसिडेंट है ही इज़ इंडिपेंडेंट. वो कोई भी पार्टी से हो सकता है और ही डज, यहाँ पे मेजर पार्टी में बी डिफरेंट, जिसको कहते हैं कांग्रेस, वो अलग हो सकती है और प्रेसिडेंट और किसी पार्टी का हो सकता है. तो यहाँ पे ये आप ध्यान दो कि ये हो सकता है कि they can be from different party. So you can see here the prime minister has to be in India. parliamentary form of government है, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रॉम मेजर पार्टी होगा और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही कैन बी इंडिविजुअल, कहीं से भी हो सकता है एंड उसको पूरी पावर है. ही इंजॉयज द होल पावर. ही कैनॉट बी रिमूव्ड बिफोर द टर्म इज़ ओवर. और टर्म जहाँ पे भी जैसा है, अपने यहाँ पे 5 साल का होता है, वहाँ पे वो 4 साल का टर्म होता है. हर 4 साल में एक बार प्रेसिडेंट बदलता है. देन वी कम विथ द 7th, दैट इज़ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Unitary form of government. In unitary form of government, all powers are vested in central government. That is, the whole territory is governed by a single center of the power. यानी unitary form of government में क्या होता है कि पूरे जो कंट्री है वो सिंगल गवर्नमेंट से चलती है. In unitary form of government, all powers are vested in the central government. That is, the whole territory is governed by from a single. जैसा हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली से काम करती है. उसके बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट आती है जो हमारे स्टेट की जो राजधानी है वहाँ से काम करती है. लाइक अगर राजस्थान का तो ये है जयपुर में हमारी एक गवर्नमेंट बैठी है, एक गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली में. मगर यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये नहीं होती है. और पूरी जो टेरिटरी होती है, यानी पूरी जो कंट्री है वो सिंगल गवर्नमेंट से चलती है. सेंटर की जो गवर्नमेंट होगी वो ही पूरी टेरिटरी को चलाएगी. तो ये भी एक तरीका है गवर्नमेंट चलाने का. ओके. द होल टेरिटरी इज़ गवर्न
फ्रॉम ए सिंगल सेंटर ऑफ पावर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। मगर यहाँ पे एक और हो सकता है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द सेंटर कैन क्रिएट यूनिट्स एंड गिव सम गवर्नमेंटल पावर टू दैम। These units do not derive their power from the constitution. The center can take away the power of the unit or dissolve. मगर जब ऐसा लगता है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको वो पूरे बड़े एरिया को कवर नहीं कर पा रही, तो वो क्या करती है, छोटे छोटे गवर्नमेंट अलग अलग प्रोविजंस में बना देती है, मगर उनको जो पावर है वो सेंट्रल से मिल रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वो उनको इतना पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को खिलाफ जा सके, जो ये बोलेंगे वही उनको करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स स्टेट के बारे में लेने के हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग पावर मिलते हैं। मगर यहाँ पे जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं इसके पास फुल पावर होता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सपोज द कंट्री इज़ टू बिग, तो वो अलग अलग जगह पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर, मगर कॉन्स्टिट्यूशन से उनको पावर नहीं मिल रहा है। ओके, द सेंटर कैन टेक अवे, और इसीलिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पावर को वापस ले भी सकती है कभी भी, तो ज़रूरी नहीं कि वो, और इसके अलावा उसके अगर उसको लगता है कि ये मेरे जो कहना नहीं मान रहा है, ये वाली गवर्नमेंट मेरा कहना नहीं मान रही है, तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। दे कैन डिज़ॉल्व इट। ओके, ख़त्म कर देगी उस गवर्नमेंट को, उसकी जगह और किसी को लगा देगी या खुद ही देखेगी उस पर्टिकुलर जगह को। देयर इज़ नो नीड फॉर ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द एग्जाम्पल इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन UK। तो ये जो है एग्जाम्पल है, दैट इज़ UK। ये इस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट चलते हैं। ओके, वहाँ पे मोनार्की भी है। ओके, नॉट एब्सोल्यूट मोनार्की बट द अदर मोनार्की आई टोल्ड यू। वहाँ पे जो क्वीन है वो हेड है, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे। ओके, सो नाउ लेट अस, तो ये हो गया हमारा, दैट इज़ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेट अस कम विद द फेडरल फॉर्म। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देर आर टू सेंटर्स ऑफ द पावर। अभी तक हमने देखा था दो सेंटर्स होते हैं, एक सेंटर होता है इसमें। अब दो सेंटर ऑफ पावर को कहेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू सेंटर होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देर इज टू पावर, टू सेंटर्स ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, then the power are distributed between central and state government by constitution। और ये पावर कौन देता है इनको? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्टार मेकर। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही उनको पावर मिलते हैं। Okay, the power are distributed between the central government and state government by the constitution। यहाँ से इनको पावर मिलता है, इसको भी और इसको भी, और दोनों के पावर अलग हैं। कोई पॉसिबल नहीं दैट द पावर्स मिंगल विथ ईच अदर, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। और दोनों के पावर अलग अलग हैं। वो स्टेट के बारे में डिसाइड करता है और वो पूरे नेशन प्लस स्टेट के कुछ जो लिमिटेड पावर्स हैं वो सेंट्रल के पास हैं। ओके, देयर इज़ अ नीड फॉर ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मे नो देयर प्रिसाइज। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिटन जो होता है, रिटन लॉ। तो
तो ये जो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और रिटर्न लॉ क्यों चाहिए? ताकि सेंट्रल को भी पता रहे कि मेरा पावर ये है, स्टेट को भी पता रहे मेरा पावर ये है, वरना दोनों आपस में लड़ेंगे कि नहीं ये मेरे पास पावर रहेगा, ये मेरे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो पावर उसका है, वो पावर उसका है। देयर इज़ अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट सो दैट द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन बी फाइनली सेटल्ड। तो अब इनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो और कुछ अनबन हो जाए, कट्टी पट्टी हो जाए, तो क्या करेंगे? तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सही है कौन गलत है, और ये जो है इंडिपेंडेंट है, वो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ना स्टेट गवर्नमेंट के, ये ध्यान रखना। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये अपना डिसीजन लेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलग से पावर देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग से पावर देते हैं। ओके, नॉट लाइक ए अमेरिका। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी पावरफुल इन इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया? ताकि वो पूरे नेशन की, वरना तो पर्टिकुलर स्टेट जो हैं वो अपनी अपनी बड़ाइयाँ करते हैं। लाइक महाराष्ट्र, वो बोलेंगे मराठी अच्छे होते हैं, यूपी जाएंगे तो वो बोलेंगे यूपी वाले अच्छे होते हैं, गुजराती लोग अच्छे होते हैं, राजस्थानी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर है कि पूरे इंडिया की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखे। तो यहाँ पे हमने ये 8 तरीके, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमने अभी देखे हैं 8 तरह के जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो। तो ये इतने तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ओके, नाउ जस्ट मगअप रिकॉन्साइल। तो सबसे पहले हमने देखा था फर्स्ट फॉर्म इज मोनार्की, और इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की होती है जिसमें एक पर्सन के पास पावर होता है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जिसमें किंग तो होता है मगर ही शुड बी वर्किंग लाइक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी कम्स विथ थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है? एक रिलीजन होता है। एंड देन कम्स विथ ए सेक्युलर स्टेट। इसमें क्या होता है? कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है एंड सभी इक्वल रिलीजन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एंड ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन। ओके, देन comes the fourth type of government, that is dictatorship. That is dictatorship। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, आपको याद होगा, एडोल्फ हिटलर, he was from जर्मनी। यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल होता है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, सिंगल इंडिविजुअल अगर रूल कर रहा है तो वो होता है डिक्टेटरशिप। और कोई पार्टी वार्टी नहीं है, उस सिंगल पर्सन के पास पूरा पावर है एंड ही कैन डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। देन कम्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने बताया था आपको कि दे हैव टू बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर।
or everybody should be member of legislature. Okay, so they should be member of legislature. Then comes the presidential form of गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट सिंगल होता है. ओके, ही इज़ द, और इसका एग्जांपल है यूएसए, और वो उस पर्टिकुलर इसमें प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल. देन कम्स द सेवेंथ, दैट इज़ यूनिटरी, जहाँ पे एक सिंगल गवर्नमेंट होती है पूरे सेंट्रल की, और वो ही पूरे को चलाती है. एंड सिंगल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट only. And then comes the last one is the federal form of government. Federal form of गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रल की होती है एक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक, एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, और दोनों को कौन गाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो बच्चों ये देखो, मोनार्की, थियोक्रेटिक, सेक्युलर, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये आपको याद करने हैं कि ये 8 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, और इनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद करने हैं. ओके, if still you have doubt, you may ask me. That is all. Thank you very much.